طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی ایسائی طاقتوں کی جلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی قیادت میں آرمینیا، ایشیائے کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ 423 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے بازنطینی افواج کو ملاجزر کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔ سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے یورپ کو اس کے خلاف لڑنے کی دعوت دی، لیکن اہل یورپ جانتے تھے کہ سلجوقیوں سے لڑنا عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اسی زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا۔ اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوکیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا۔ وہ خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن سلجوقی حکمران ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ہو گئی۔ 7 سال کے عرصے میں مغربی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا، اور 491 عیسوی میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امڑ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائیوں نے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی، اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ تقریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی کی شخصیت میں نمودار ہوا، اور انہوں نے جان توڑ حملوں سے صلیب کے علمداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکے، اور ارض مقدس پر عیسائیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے رہ گیا۔ لیکن 584 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پر پھر ایک بار غازیان اسلام کے اذانوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنے ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے جمع ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کے بہادری کے کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا لیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی جلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین کھینچ لایا۔ ہلال و صلیب کے معمولی مارکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرا ڈالے پڑی تھی۔
एक तरफ जैतून के चंद दरख्तों के करीब अहमद बिन हसन के दस्ते का तुर्क सालार चंद सिपाहियों और अफसरों की मजलिस में गुज़श्ता लड़ाई के वाक़यात पर तबसरा कर रहा था। अहमद बिन हसन कहाँ है? इसने अचानक एक सिपाही से सवाल किया। सिपाही ने जवाब दिया, वो दरख्त के नीचे मशल के सामने बैठकर कोई किताब पढ़ रहा है। तुर्क अफसर ने कहा, अगर इसे किताबें पढ़ने का इस कदर शौक ना हो तो वो एक अच्छा सिपाही बन सकता है। परसों वो सचमुच एक सिपाही की तरह लड़ रहा था। इसने 5 नसरानियों को मौत के घाट उतारा और मुझे यकीन नहीं आता कि वो अहमद है, लेकिन ये किताबें इसे नकारा बना देंगी। एक नौजवान जो अब तक खामोशी से एक तरफ बैठा हुआ था आखिर बोल उठा। हो सकता है कि वो मुख्स एक सिपाही बनने के बजाय किसी फौज की रहनुमाई के लिए पैदा हुआ हो। एक आम सिपाही शायद तलवार से ज्यादा किसी चीज की जरूरत महसूस न करे, लेकिन एक सालार किताबों की जरूरत से इनकार नहीं कर सकता। तुर्क अफसर ने नौजवान के अल्फाज की तलखी को एक बुलंद कहके में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, तो अहले बगदाद सब के सब सालार हैं, क्योंकि वो तो सभी किताबें पढ़ते हैं। नौजवान ने जवाब दिया, ये आलमे इस्लाम की बदकिस्मती है कि अहले बगदाद किताब के साथ तलवार की जरूरत महसूस नहीं करते, वरना आलमे इस्लाम का हर सिपाही इनकी क़यादत में लड़ना अपने लिए बायस से फख्र समझता। मशल की रोशनी से दूर होने के बायस तुर्क सालार अपने मुखातिब को पहचान न सका। इसने जरा तुर्श लहजे में कहा, ये अहमद बिन हसन का दूसरा साथी कहाँ से आ गया? नौजवान कोने से उठकर सालार के करीब आकर खड़ा हो गया। सालार ने कहा, अरे यूसुफ, आज तो तुम्हारी जुबान कैसे खुल गई? बैठ जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि यहाँ की राय आमा अहले बगदाद की इस्ताइश को पसंद नहीं करती। यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, असल मौजू ये था कि सिपाही को इल्म सीखना चाहिए या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलवार एक ऐसा सरकश घोड़ा है जिसके लिए इल्म की बाग की जरूरत है। बगदाद वाले फकत बाग को संवार रहे हैं, इनके पास घोड़ा नहीं। सालार ने पूछा, और हमारे मुतालिक तुम्हारा क्या कहना है? यूसुफ ने जवाब दिया, हमारे से मुराद आपकी अपनी जात है या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज? तुर्क अफसर ने इस सवाल से परेशान होकर गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए कहा, बातों में ये नौजवान अहमद बिन हसन का भी उस्ताद मालूम होता है, इसे भी बुलाओ। एक सिपाही उठकर अहमद बिन हसन को अपने साथ ले आया। तुर्क सालार ने कहा, अहमद, परसों तुम सचमुच एक सिपाही की तरह लड़ रहे थे, बैठ जाओ। अहमद ने जवाब दिया, मैं खालिद बिन वलीद की फतुहात पढ़ रहा था। तुर्क अफसर ने सवाल किया, भला खालिद बिन वलीद की फतुहात ज्यादा हैं या हमारे सुल्तान की? मेरे ख्याल में इस जमाने की जंगें मौजूदा जंगों के मुकाबले में मामूली लड़ाइयां हुआ करती थी। अहमद बिन हसन ने जवाब दिया, आपका ख्याल आमतौर पर सही नहीं होता। मैं बेइल्मी को काबिल माफी समझता हूँ, लेकिन रियाकारी को काबिल माफी नहीं समझता। मैं मानता हूँ कि आपको किताबों से नफरत है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आपको एक मुसलमान माँ ने हजरत खालिद बिन वलीद के फतुहात के हालात न बताए हों और आपको फख्र और एहतराम के साथ इन मुजाहिदीन के नाम लेना ना सिखाया हो, जिन्होंने पेट पर पत्थर बांध कर और जिस्म पर चीथड़े ओढ़ कर कैसर और किसरा के ताज रोम डाले। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद के जमाने में अक्सर जंगें ऐसी थीं जिसमें इस्लाम की एक तलवार के मुकाबले में दुश्मन की 10 तलवारें हुआ करती थीं। मेरी बातों से आपको तकलीफ जरूर होगी, आप मेरे सालार हैं, मैदाने जंग में आपका हर इशारा मेरे लिए हुक्म है, लेकिन वो भी इसलिए नहीं कि मैं आपकी या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी चाहता हूँ। और सुल्तान का एहतराम अगर मेरे दिल में है तो सिर्फ इसलिए है कि मेरी तरह वो भी आलमी इस्लाम के एक सिपाही हैं। अहमद बिन हसन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक दरख्त की आड़ से एक निकाब पोश नमदार हुआ और इसने आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज में कहा, खुदा सलाहुद्दीन अयूबी को आलमे इस्लाम की नेक तवक्कुआत पूरा करने के काबिल बनाए और इसे खुशामदियों से महफूज रखे। अजनबी की आवाज में गुस्सा और हैबत और जलाल था। सामईन बदख्वास होकर इसकी तरफ देखने लगे। इसने मशल की रोशनी के करीब पहुंचकर चेहरे से नकाब उठाया। तुर्क अफसर खौफजदा होकर बोला, सुल्तान। सब के सब उठ खड़े हुए।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने तुर्क अफसर से मुखातिब होकर कहा, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम जाहिल हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आइंदा 6 माह तक फुर्सत के औकात में अपने साथियों से बिल्कुल अलग रहो और इस दौरान तुम तारीख पढ़ा करो। 6 माह बाद मैं खुद तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुमने मेरी तसल्ली कर दी तो तुम्हें तरक्की दी जाएगी, वरना तन्हाई में बैठने की सजा और बढ़ा दी जाएगी। और तुम दोनों इधर आओ। सुल्तान ने अहमद बिन हसन और यूसुफ की तरफ इशारा किया। अहमद और यूसुफ आगे बढ़कर सुल्तान के करीब खड़े हो गए। सुल्तान ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मैं मदीने से आया हूं, अहमद बिन हसन ने जवाब दिया। सुल्तान ने यूसुफ की तरफ देखा। वो बोला कि मैं बगदाद से आया हूं। तुम मेरी फौज में कब शरीक हुए? अहमद ने जवाब दिया, मुझे तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं और यूसुफ को कोई 5 थी। मुझे तुम्हारी मुजाहिदाना सलाहियतों का सही इल्म नहीं, इसलिए तुम्हें 12 दस्तों का सालार मुकर्रर करता हूँ। और यूसुफ, तुम्हारी आवाज में एक सिपाही की सी खुद एतमादी है। मुमकिन है तुम आगे चलकर अपने आप को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी संभालने के काबिल साबित कर सको, और इसलिए मैं तुम्हें 5 दस्तों का सालार मुकर्रर करता हूँ। काश मैं मिस्र का सुल्तान होने के बजाय इस्लाम का एक मामूली सा सिपाही होता। मेरे लिए ना सिर्फ वो मुजाहिदीन बल्कि वो लोग भी काबिल रश्क हैं जिन्होंने इराक और शाम के मैदानों में हजरत खालिद बिन वलीद की अफवाज के सवारों को गर्द के बादलों में रूपोश देखा था। चंद दिनों के बाद सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में कोई शख्स ऐसा ना था जो अहमद बिन हसन और यूसुफ बिन जही से वाकिफ ना हो। 1 साल के बाद यूसुफ सुल्तान के जांबाजों के दस्ते का सालार और अहमद बिन हसन मजलिस शूरा का रुकन बन चुका था। यूसुफ और अहमद बिन हसन ने अहद कर रखा था कि जब तक यरूशलेम पर दोबारा निशाने सलीब की जगह हिलाली परचम नस्ब न होगा वो घर पर नहीं जाएंगे। जिन अय्याम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह यरूशलेम पर आखिरी हमले की तैयारियां कर रहे थे, बगदाद में सुल्तान की फौज के चंद रजाकार जो कि छुट्टी पर गए हुए थे वापिस आए और इनमें से एक सिपाही ने यूसुफ के खीमे में दाखिल होकर इसकी बीवी का खत पेश किया। यूसुफ ने इसे बैठने का इशारा करते हुए खत खोल कर पढ़ा और थोड़ी देर सर झुकाकर सोचने के बाद सिपाही की तरफ देखने लगा। सिपाही ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को आपके घर भेजा था। वो आपकी बीवी की हालत नाजुक बयान करती थी। आपका बच्चा भी मैंने देखा था, वो तंदुरुस्त है। मैं अपनी बीवी से कह आया हूँ कि वो आपकी बीवी की खिदमत करे। 8 दिनों के बाद मुसलमानों की फौज चारों तरफ से यरूशलेम पर जलगार कर रही थी। फसील पर पहुंचने के लिए इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे। सुल्तान ने अपने दिल में कहा, अगर ये फसील पर पहुंच गया तो मैं इसे अपनी तलवार इनाम में दूंगा। यूसुफ फसील पर पहुंच चुका था और चंद नौजवान इसकी तकलीद कर रहे थे। यूसुफ की तलवार चंद आदमियों को मौत की घाट उतार चुकी थी। सुल्तान अपने जर्नैल से कह रहे थे, अब वो मेरे घोड़े का भी हकदार है। चंद मुजाहिद फसील पर चढ़कर, नौजवान, मैं तुम्हें हर अव्वल दस्ते का सालारे आला बनाता हूँ। थोड़ी देर के लिए सुल्तान की तवज्जो किसी और महाज पर मबजूर हो गई। जब दोबारा उन्होंने फसील के इस हिस्से की तरफ देखा तो इनके सिपाही इस मुकाम पर कब्जा जमा चुके थे। वो देखिए, यूसुफ बहुत खतरनाक मुकाम पर लड़ रहा है। सुल्तान ने ऊपर निगाह उठाई। यूसुफ की तलवार बैक वक्त 3 तलवारों से लड़ रही थी। सुल्तान के 2 सिपाही इसकी मदद के लिए पहुंच चुके थे। यूसुफ की तलवार एक ही ज़रब से निशाने सलीब को सरनगू कर चुकी थी। सुल्तान ने आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें इस शहर का वाली मुकर्रर करता हूँ। लेकिन यूसुफ के हाथ से तलवार गिर चुकी थी और फिर अपने दोस्त अहमद की तरफ देखा और बिलाखिर इसकी निगाहें लौटकर लटकते हुए सलीबी झंडे पर मरकूज होकर रह गईं। अहमद बिन हसन ने कहा, इस शहर के हाकिम की ख्वाहिश यही है कि वो फतह का झंडा अपने हाथ से नस्ब करे। सुल्तान को इन अल्फाज के साथ यूसुफ की आंखों में एक गैर मामूली चमक नजर आई। सुल्तान ने दोबारा इसकी नब्ज देखी और एक सिपाही को झंडा लाने का इशारा किया। एक अफसर ने टूटा हुआ निशाने सलीब उतार कर फेंक दिया
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह और अहमद बिन हसन ने यूसुफ को सहारा देकर उठाया। यूसुफ के बेजान हाथों में अचानक जिंदगी आ गई। इसने झंडा नस्ब किया। इसकी होंठों पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ खुदा की राह में शहीद होने वालों को नसीब हो सकती है। जान कुनी की हालत में इसने अहमद बिन हसन से जो आखिरी बात कही वो ये थी, अहमद, मेरी बीवी की दुआ का सिर्फ एक जुमला कबूल हुआ। मैं यरूशलेम की फतह की खबर लेकर इसके पास न पहुंच सका, लेकिन कुदरत का एक राज अब मेरी समझ में आ रहा है। जाहिदा बगदाद में नहीं किसी और मुकाम पर मेरा इंतजार कर रही है। एक लंबी सांस के बाद इसकी आंखों के सामने मौत के पर्दे हायल हो चुके थे। सुल्तान ने कहा, अहमद, तुम फौरन बगदाद जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हें कुछ रकम यूसुफ की बेवा के लिए देता हूँ। अगर वो खुदा न खासा जिंदा ना हो तो मैं इसके बच्चे की परवरिश तुम्हें सौंपता हूँ। थोड़ी देर के बाद सुल्तान की कयामगाह के सामने 3 घोड़े खड़े थे, जिनमें से एक वो था जिस पर थोड़ी देर कबल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह खुद सवार थे। रुखसत के वक्त सुल्तान ने अहमद बिन हसन को अपने खीमे में बुलाया और चमड़े की एक थैली देते हुए कहा, इसमें 5000 तलाई सिक्के हैं। इनमें से 1000 तुम्हारे लिए और बाकी यूसुफ की बेवा के लिए। और अगर खुदा न खासा वो जिंदा ना हो तो ये रकम यूसुफ के बेटे की परवरिश पर खर्च करना, और इसके मुस्तकबिल के लिए मैं तुम्हें कुछ और रकम देता हूँ। ये लो। सुल्तान ने एक रेशमी कपड़े की थैली उठाते हुए कहा, इसे खोल कर देखो। अहमद बिन हसन ने थैली लेकर खोली। इसमें पेश कीमत जौहरात जगमगा रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये जौहरात इसे इस वक्त देना जब वो बालग हो जाए। सुल्तान ने फिर कहा, 2 और चीजें जो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इनमें से एक मेरा घोड़ा, एक सिपाही ये घोड़ा छोड़ने के लिए बगदाद जाएगा। बगदाद में से बेचकर जो रकम हासिल होगी वो भी यूसुफ की बीवी को दे देना। मुझे उम्मीद है कि बगदाद के लोग मेरे घोड़े को अच्छी कीमत पर खरीदेंगे। दूसरी चीज मेरी तलवार है, वो यूसुफ के बेटे के बड़ा होने तक तुम्हारे पास महफूज रहेगी। फिर दोनों ने मुसाफा करते हुए कहा, अब तुम जाओ। मैं चाहता हूं कि बगदाद में यरूशलेम की फतह की खबर सुनने वाली यूसुफ की बीवी हो। खुदा हाफिज। चंद हफ्तों के बाद बगदाद पहुंचकर अहमद बिन हसन को मालूम हुआ कि यूसुफ की बीवी यरूशलेम की फतह से 4 दिन पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और मोहसन की बीवी इसके बच्चे को अपने घर ले गई थी। और जब मोहसन ने 2.5 साल का एक खूबसूरत बच्चा लाकर इसकी गोद में बिठा दिया तो इसका दिल भर आया। अहमद बिन हसन इसके सर पर प्यार और शफकत से हाथ फेरने लगा। शाम तक बगदाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के घोड़े का चर्चा हो चुका था। बगदाद के उमरा में से हर एक इसे अपने असबल की जीनत बनाने के लिए बेकरार था, और इनमें से अक्सर ऐसे थे जो घोड़े पर चढ़ने से ज्यादा इसे संवारना जानते थे। खलीफा के मुतालिक मशहूर था कि जिस कदर इसका दिल कोई चीज खरीदने के लिए बेकरार होता था, इसी कदर इसे अपनी जेब पर इसकी गिरफ्त मजबूत होती थी। लेकिन खलीफा को इस वक्त खबर हुई जबकि चीन का सफीर ये घोड़ा 10,000 की मालियत के जवाहरात के इवज खरीद चुका था। अगले दिन अहमद बिन हसन यूसुफ बिन ज़हीर के बच्चे को लेकर मदीना रवाना हो गया।